Hello, everyone. Today we speak with a change maker in this Leaders Talk segment who bridges the worlds of grassroots activism and political leadership. As a General Secretary of BJP Mahila Morcha Delhi Pradesh and founder of Sangini Saheli, she has empowered thousands of women through health awareness, skill building, and community leadership. From distributing over 5.6 lakh sanitary pads to turning women into local health ambassadors, her work is transforming lives. In this conversation, we explore her journey, the impact of Sangani Saheli, and her vision for a stronger and more empowered India. Empowered India. So, welcome, Ms. Bharadwaj. Thank you so much, Ashish ji. My pleasure. So, Priyalji, I am joined by my colleague Ruchika Kumar, who is the editor of the CSR Universe, and Dr. Shweta Singh, who is the consulting editor. So, we thought exploring different dimensions of work that you have been doing, uh, fashion, sustainability, political leadership, uh, and then women empowerment, obviously. So, all integrated together, how difficult is it for you to manage everything? Obviously we are going to talk more about the social sector work that you have been doing, but it's amazing that you are doing so many things together. How is it possible, and how you have been managing this? So, well, Ashish ji, my journey has never been a straight path. It was more like a series of moments that kept nudging me towards where I am meant to be. So, growing up, I saw the quiet strength of women which were around me, and how much they carried, how little they complained, and how rarely they were heard. So this was always there in my back of mind before I stepped into any of my sphere of my life. So I saw that the leadership is just not a position; it is a commitment, I must say, and it comes with a lot of responsibility as well. So turning into a politician, and the work is going on the way the fashion life started way back in 2010. It's been 15 years into this area where I've been working along with the women sector and working towards the upliftment and restoration of the textile, of the weaves, and how we can revive the fashion as well, right? Getting the technique, the designs, the design component from our end, and getting it incorporated from those clusters where we've been working, right from Chanderi to Banaras to Srinagar Badgaon district, and providing them as well the platform that how they can they can showcase their work from PB, the fashion label, and through various be it be Aza India or now as Nika, so where the fashion can be showcased as. So it is all about how you interweave, I must say, the details of it, where a woman who comes with the technique, who has this aura, who has this hand of working towards the creativity. So that's how the fashion component has been so far. And definitely we are working with absolutely we are trying to work with the sustainability model, where we encourage a lot of free chemical, zero chemical, the dyes basically. So we are trying to incorporate that also in every of our design components, so that Mother Earth is also saved for the further future. And we are trying to work on the fabrics, which are pertaining towards the cottons, towards the linen, silk, the natural fabrics, and the natural dyes. Then coming to the Sangini Saheli, how Yes. the Sangini Saheli संगिनी has सहेली के बारे में ज्यादा लोग जानना चाहेंगे, कैसे महिला सशक्तिकरण पे काम हो रहा है वहां से? Zarur, Zarur. So, being with Sangini Saheli, this movement started in 2019 when we just started off and thought that how we can incorporate the rural area girls all together along with us.
we were trying to understand right from the interiors of the rural India challenges क्या क्या हैं और किस तरीके से जो माइंडसेट है आज भी भारत में वो किस प्रकार से मूव हो रहा है चारों दिशाओं में। जब गांव में जाना हुआ तो गांव के जो चैलेंजेस थे वो शहरों के चैलेंजेस के बनस्पत बहुत डिफरेंट थे और आज भी कहीं ना कहीं पीरियड्स के ऊपर बात करने में जो टैबू है या शिक्षा को लेकर के जो टैबू है या शादी को लेकर के अगर कहीं कोई वाद विवाद है तो आज भी ओपनली उस पे बातचीत ना होना रूरल इंडिया का एक बहुत कॉमन एस्पेक्ट जो मैंने देखा और मुझे लगा कि इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। सो जब इस चीज पे हम काम कर रहे थे तो दैट्स हाउ संगिनी सहेली के साथ में एक उसको पूरा रूप मिला और बाय 2020 जब कोविड एकदम लॉकडाउन हुआ तब हम लोग खाने का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तभी वहां दो बच्चियां निकल कर आई और उन्होंने कहा कि दे वर द माइग्रेंट लेबर्स बेसिकली उनके पेरेंट्स थे उनके बच्चे। तो उन बच्चियों ने कहा कि दीदी खाना तो मिल रहा है पर क्या हमें सैनिटरी पैड की उपलब्धता हो सकती है बिकॉज सारी दुकानें बंद थी। तो दैट्स हाउ इट took a formal shape and widely right from Jammu Kashmir till West Bengal हमने सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया बिकॉज जब हम अपने स्कूल डेज को वापस अगर याद करते हैं तो हमें आज भी ध्यान है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल हमारे स्कूल में आता था, एंडोर्स करता था, वर्कशॉप लेते थे जहाँ पे विस्पर के बारे में बात की जाती थी और इट वाज अ कॉमन बिकॉज आई कम फ्रॉम अ कोएड स्कूल सो इट वाज अ कॉमन ग्रुप वेयर वी ऑल वर टॉट अबाउट। सो आई थिंक कि अगर हम बातचीत राइट फ्रॉम अपने घर से लेके स्कूल से लेकर के किसी भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जब हम बात करते हैं और ओपनली जब बात करते हैं तो सारे जो एस्पेक्ट है इट बिकम्स टू नॉर्मल। सो नॉर्मलाइजेशन वाज इम्पॉर्टेंट। सो इन द कोविड फ्रेज okay, that was a particular time frame where we did a massive drive for this pad distribution right from every reaching out to the railway station to the administration where we have provided the sanitary pad packs to the needy one। संगिनी सहेली की जो जर्नी थी वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडीली चली और बहुत छोटे कदमों के साथ हम आगे बढ़ते हुए चले गए और जिस प्रकार से फिर हमने अपनी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स थी उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया जहां पर कि हमने यूनिट्स लगाए जहां हम सैनिटरी पैड को हम क्यों ना खुद बना सकें। एक टाइम ऐसा था कि जब हम ऑर्डर भी कहीं प्लेस करना चाह रहे थे तो उतनी बल्क क्वांटिटी नहीं मिल रही थी तो हमने सोचा कि भाई क्यों नहीं हमारे ऐसे छोटे यूनिट होते जहां की सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं को भी काम मिले और उस प्रकार से हमने सैनिटरी पैड की मैनुअल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमने छोटे छोटे यूनिट्स लगाए राइट फ्रॉम नोएडा टू मथुरा टू अलवर। तो इस प्रकार से हमारे जब यूनिट इस्टेब्लिश हुए तो उसमें हमें ये देखने के लिए मिला कि महिलाएं बहुत उत्सुक थी और उनमें बहुत उत्साह था जहां उनको 2 रुपए की कमाई भी हो रही थी और एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ भी आगे बढ़ रहे थे। सो दैट्स हाउ हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो जर्नी रही है सो फार। तो हमने विभिन्न कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ऑफिसेज में हमने वेंडिंग मशीन्स लगानी शुरू करी। तो पहला जो पुलिस स्टेशन पूरे देश भर में बनाया वो था आरके पुरम का पुलिस स्टेशन जहां पे हमने वेंडिंग मशीन को टॉयलेट में ना लगा हमने ऑफिस स्पेस पे जैसे ही आप एंटर करते हैं वहां हमने पहला टैबू तोड़ा कि जहां पे लेट द एडमिनिस्ट्रेशन लेट द यू नो लेट द कॉमन पीपल जो भी आ रहा है जो भी जा रहा है वो देखे और उस चीज को एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ उस सोच को बढ़ाए। तो हमने ऐसा पहला पुलिस स्टेशन जो कि आरके पुरम का थाना था जहाँ पे हमने पहली वेंडिंग मशीन लगाई और फिर वहां से हमने पलट कर नहीं देखा फिर हम आगे बढ़ते चले गए। हमने तमाम दिल्ली में बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन डीएम के ऑफिसेज हैं, साउथ दिल्ली तो हमने पूरा कवर किया, टुवर्ड्स हम ईस्ट दिल्ली भी बढ़े। हमने कुछ अपने भाजपा के कार्यालयों को भी हमने पूरा वहां भी अपने सैनिटरी पैड की वेंडिंग मशीन्स लगाई और कुछ हमारे कोर्ट्स हैं। नाउ संगिनी सहेली इज एम्पैनल्ड विथ डालसा
एंड NCOI एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिसेबिलिटी, तो काम लगातार मेंस्ट्रुअल सेगमेंट पे चल ही रहा है जी। सो मेंस्ट्रुअल को हमने एक टैबू ना रखते हुए, वी मेड मेंस्ट्रुअल हेल्थ अ सोर्स ऑफ एम्पावरमेंट एंड नॉट एन embarrassment. This is what my take from this journey of menstrual campaign was there, and still we are ongoing, still we are providing to the needy one. और हम चाहते हैं कि जितना हमारी नॉलेज हम एक्सपैंड कर सकते हैं through with this hygiene practice, one should do it, and we are trying from our end. And in between, we have started collaborating with one of the girl who was working on the menstrual cup as well. So now our agenda is to take forward the menstrual cup, which the practice is all about it. Ji. Wonderful. एक मुझे So I'll question come back with more questions, but Ruchika and Shweta has a few Shweta questions. has. So, just yeah, please. just a little going deeper into संगिनी सहेली, because इतना बड़ा स्केल आपने अचीव कर लिया इतने कम टाइम में, कहेंगे इसमें आपके कितने मतलब पार्टनर्स कौन कौन थे फॉर संगिनी सहेली? हु वर द बिगेस्ट सपोर्टर्स दैट हेल्प्ड यू एडवांस दिस मिशन? So during the lockdown, जब ये हमारा मिशन शुरुआत हुई, सो हमारे साथ हमने सारे ब्यूरोक्रेट्स को अप्रोच किया, बिकॉज दे वर ऑन द ग्राउंड, दे वर वर्किंग रिलेंटलेसली, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो। क्योंकि जब हम फीड माय नोएडा का एक चैप्टर कर रहे थे, वहां पर हमने पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में किचन रन करने से लेके लोगों तक, लास्ट माइल जो नीडी वन थे उन तक खाना पहुंचाने का जब काम किया, सो दैट गिव एन प्रॉपर स्ट्रक्चर। एंड फिर हमने अपनी जो विंग थी वो हमने ब्यूरोक्रेसी के थ्रू, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में नीचे सब लोग काम कर रहे थे, तो उनसे हमने संपर्क करना चालू किया। एंड दे वर जस्ट हैंड इन हैंड, उनको आवश्यकता थी और हमें भी आवश्यकता उनकी थी, और उसी तरीके से ये माध्यम बनता चला गया और हम आगे बढ़ते चले गए। Wonderful. My question, can I ask Shweta? हाँ, please go ahead. So my question is कि हम लोग यहाँ पे cities में बैठे रहते हैं अपने air conditioned घरों में, what we have the notion that people from these communities, they are not very resilient, but इसका opposite होता है when we speak to people who are working on ground, people like you, तो हमें पता चलता है कि उनकी strengths क्या हैं. So according to you, what have been the strengths or key learnings or lessons that you've learned while working with this community? And if you could throw some light on the community engagement mechanisms, किस तरह से आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए या किस तरह से आप लोगों में अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, उन्हें कैसे एंगेज कर? देखिए, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की बात आई, सो हमने एक तो प्रोसेस है जहां आप सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव कर रहे हैं, जहां आप उनसे उनके विचार को एक्सचेंज कर रहे हैं, उनका क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोच रही हैं। सो जब हमने उनसे बातचीत करना शुरू करी और उनके हेल्थ पे काम करना शुरू करी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पॉकेट साइज फॉर अ कंपोनेंट, जहाँ पे कि 50 महिलाओं के साथ इंटरेक्शन जब शुरुआत हुई, सो ये चीज समझ में आई, जहां हमने यूनिट प्लेस किया कि वो लोग इससे आगे और बढ़ना चाहती हैं। इट वॉज जस्ट नॉट द मेंस्ट्रुअल हाइजीन की साइकिल पे डिस्कशन, या फिर उनके कैल्शियम आयरन पे, या फिर उनके न्यूट्रिशन पे, बट उसके आगे भी उनको चाहिए थी फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, फिनेंशियल लिटरेसी की आवश्यकता थी। तो जब हमने ये प्रोग्राम अपना जब हम कर रहे थे, तो फिर हमने गवर्नमेंट की स्कीम को देखा, और SHG जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो कि स्वयं सहायता समूह जिसको कहते हैं, और एक हमने देखा कि सरकार में SHG को बहुत प्रमोशन मिल रहा है और लखपति दीदी के नाम से उसको जाना भी जा रहा है। तो फिर फोकस हमने उसके ऊपर शिफ्ट करते हुए हमने सोचा कि जब आपके पास में ऐसे ग्रुप अपने तैयार हो सकते हैं, जहां एक SHG में 10 महिलाएं हैं, और उनको हम एम्पावर कैसे करेंगे, उनको एम्पावर हम फिनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से करेंगे, उनको हमने काम करने का एक जरिया भी उनको दिया है, उनको हम 2 पैसे कमाने का एक प्लेटफॉर्म भी दिया है, उनको मार्केट भी हम अवेल करा रहे हैं, उनके साथ अवेयरनेस सेशन भी कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम फॉर्मली स्ट्रक्चर में लेकर के आगे। तो वहां से हमने SHG के रजिस्ट्रेशन करने शुरू किए। तो जब हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, तो इट वाज जस्ट नॉट SHG के रजिस्ट्रेशन,
इट वाज ऑल टुगेदर, जहां आप पूरी एक जिंदगी के साथ जुड़ जाते हैं, जहां उनकी छोटी बड़ी जरूरतों के साथ आप जुड़ जाते हैं। वो हो सकता है कि आधार कार्ड का कार्ड नहीं बन पाया हो, या फिर उनका पैन कार्ड नहीं बन पाया हो, या फिर उनकी बच्चों की कोई स्कॉलरशिप उनको हम अवेल करा सकते हैं, इत्यादि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमने एसएचजी के ग्रुप्स फॉर्म करने शुरू, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने ऑर्गेनाइज करने शुरू किए, जहाँ पे कि हमने उन्हें जब अचार का सीजन आया तो उनको अचार बनाने भी सिखाए, जो हमारी पुराना जो पद्धति रही है, क्योंकि इस वर्ग की जो महिलाएं हैं जो रिलेट कर सकती हैं, जो जिस खूबी में आगे बढ़ सकती हैं, तो हमने, चाहे वो अचार बनाने की वेरियस टेक्निक थी, तो उसको अब आप और बेहतर तरीके से कैसे कर सकती हैं, आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकती हैं, उसकी पैकेजिंग क्या हो सकती है, उस सामान को बेचने के लिए आप एग्जिबिट कहाँ कर सकती हैं, क्या आप सरकार के साथ में आपके काउंटर लग सकते हैं, या किसी कॉर्पोरेट हाउस के साथ गिफ्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे अब हमने 64 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अपने डिजाइन किए हुए हैं, जिसमें राइट फ्रॉम कुकिंग टू पैकेजिंग टू धूप बत्ती बनाने से लेके, अगरबत्ती बनाने से लेकर के, पूजा की सामग्री से लेकर के, चाहे साड़ियों पे ब्लॉक प्रिंटिंग काम करने का हो, चाहे बैग्स बनाने की बात हो, चाहे रीयूज चादर के थैले बनाने की बात हो, या फिर उनको हम फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ में, अब आधार कार्ड के कैंप या आयुष्मान जैसे भारत की योजना आई, तो अब वो महिलाएं कैंप्स भी कंडक्ट करती हैं, वो लोगों के साथ में हैंड इन हैंड वो उनके साथ रजिस्ट्रेशन भी करती हैं। सो मुझे लगता है कि विमेन एम्पावरमेंट इज होलसम, वेयर आप सारी चीजों को इकट्ठा लेकर के जब आप आगे बढ़ते हैं, तो हमने बहुत सारे ऐसे अवेयरनेस कैंप्स अपने कंडक्ट किए, स्कूल्स में किए, गांव में किए, हेल्थ सेंटर्स पे किए, तो जहां पर कि हमें हर प्रकार के आंसर मिले और एसएचजी के माध्यम से हम आगे बढ़ते चले गए। और अगर आपके पास, इफ यू हैव एनी एग्जांपल्स टू शेयर ऑफ अ सक्सेस स्टोरी, एक दो लोगों बेनिफिशियरीज की हु हैव यू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स कंप्लीटली, वी वुड लव टू हियर दैट। राइट। तो यहाँ दिल्ली में ही हमने जब एसएचजी के रजिस्ट्रेशन अपने शुरू किए, और बीच में हमारे यहाँ इलेक्शंस आ गए, तो जो महिलाएं हमारे साथ जो काम कर रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि क्या आप लोग चुनाव में काम करना चाहेंगी? देन आई रियलाइज्ड एंड आई थॉट कि भाई ये लोग अपने घर से, यहाँ से बाहर निकल कर के जाने के लिए तैयार हैं, ये आउट स्टेशन जाने के लिए तैयार हैं। तो एक विचार ये आया कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इनका इंट्रोडक्शन और इनका इंडक्शन एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कैसे हो सकता है। सो ये थॉट शुरू हुआ। उसी बीच में जम्मू कश्मीर में हमें, हमारी पूरी जो एसएचजी की महिलाएं थी, उनके लिए वहां पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए एज अ ट्रेनर्स, अब उनको जब कॉल आउट करना शुरू हुआ, तो मैंने देखा कि लास्ट ईयर जब दिसंबर में हमारा पहला बैच गया, जिसमें कि 6 महिलाएं एज अ ट्रेनर गई, जो कि अब सैंडविचेस से लेकर के जो स्मॉल हमारे फूड पैक्स जो तैयार होते हैं, जब भी हमारा कोई भी प्रोग्राम है, हम हाई टी के लिए रखते हैं या हम मॉर्निंग स्नैक्स के लिए रखते हैं, तो उसकी जब ये लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देने के लिए गई, तो पहला जो बैच 6 महिलाओं का था, और उनका जो सक्सेस रेशियो था, क्योंकि जो उनकी कहानी थी कि गुरेज से भी बहनें आई थी, डोडा से भी बहनें आई थी, जो काम को सीखना चाह रही थी, और हम एज अ ट्रेनर गए थे। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ी डेफिनेशन थी, कि वो महिलाएं आज वो 6 से बढ़कर के 120 हो गई हैं। तो ऐसे ही हमारे पास में 120 ट्रेनर्स हैं, जो देश भर में आज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करने के लिए जाती हैं। That's wonderful. I'm sure challenges भी होंगे, especially when you are trying to provide market linkages to these people. Apart from that, और आपने क्या challenges face किए हैं या you're facing and you would want other stakeholders in the, especially in the from the CSR domain to come and help you and amplify your efforts? मुझे लगता है कि चैलेंजेस एक पर्टिकुलर टाइम तक आते हैं रुचिका। सो वो फेज हमने देखा
और उस फेज के साथ जब हम गुजर रहे थे, तो लोगों का सबसे बड़ी बात है विश्वास होना आपके ऊपर, आप में विश्वास होना। सो मैंने ये देखा कि महिलाएं बहुत सिंसियर होती हैं, और सिंसियरिटी के साथ जब वो काम करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो उनके परिवार का भी सपोर्ट आना शुरू हो जाता है। तो इनिशियली वही महिलाओं के परिवार से सबसे पहला जो मैंने विरोध देखा है, वो सपोर्ट कहें या विरोध कहें या उनकी सिक्योरिटी कहें, तो पहला जो कंजर्वेटिवनेस है वो फैमिली से ही आती है, वो थॉट प्रोसेस घर से ही शुरू होता है। तो मेरा सबसे पहला चैलेंज तो जो मैंने देखा महिलाओं के साथ में, क्योंकि मुझे उनको अब शहरों से वो बाहर निकल के जाना चाह रही थी, उनको कई दफे लेट भी होता था, कई दफे कैंप्स के लिए 2-2 3-3 दिन स्टे भी करना होता था। सो ये चैलेंजेस, ये बेसिक चैलेंजेस हैं जो कि हम जिनको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हम सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के चैलेंजेस में लगे रह जाते हैं कि इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, बट रूट कॉज जो है वो वहां से शुरू होता है। तो मैंने ये पहला जो स्टेप था वो घर के रेजिस्टेंस से लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत सारे चैलेंजेस का पार्ट आया, जैसे कि कुछ महिलाएं जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में नहीं आ रही थी, परंतु उनको भी एसएचजी के उसमें जुड़ना था, तो वो कैसे जुड़ सकती थी, तो उसकी लड़ाई अलग चली, तो उनको भी हमने अपने साथ में इंडक्ट करते हुए आगे बढ़े। सो चैलेंजेस इनिशियल फील्ड में थे, आज ये स्थिति है कि काम इतना सारा है और काम करने के एवेन्यूज बहुत सारे हैं, बिकॉज अब लोग आपके अंदर विश्वास से देखते हैं और उन्हें मालूम है कि दे विल डिलीवर इट एट द राइट टाइम एंड राइटली दे विल डिलीवर इट, दे आर डूइंग द वर्क विद ऑनेस्टी। तो मुझे लगता है कि काम की कहीं दूर दूर तक कमी नहीं है। और मैं सीएसआर के माध्यम से तो डेफिनेटली, बिकॉज आप लोग तो क्लाइमेट चेंज पे काम कर रहे हैं, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू रन अ ड्राइव अलोंग विथ यू, जहाँ पे कि हम जहाँ हम थैलों को और प्रमोट कर सकें। आज हो रहे हैं, लोगों का माइंडसेट बहुत चेंज हुआ है, जहाँ पे कि बेसिक अब आप किसी के भी घर में अगर कोई काम करने वाला है तो वो सब्जी लेने के लिए थैला ही लेकर के जाता है, या सामान लेने के लिए जाता है, या आप खुद भी जाते हैं। सो ये माइंडसेट अगर हम लास्ट माइल तक अगर इसको रीच कर ले जाएंगे, तो मुझे लगता है ये थॉट प्रोसेस की ही बात है। तो वी कैन रन अ ड्राइव टू सेव मदर अर्थ, वेयर वी कैन enhance with the exponential। अगर हमारा नंबर पे बैग्स के यूसेजेस बढ़ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस होगी। डेफिनेटली प्रियल जी। सो प्रियल जी, ये एक कैंपेन रहा जो आगे हम करेंगे। What according to you are the next milestones for you over next 2 years at Sangini Saheli? So Sangini Saheli, this year we are pledging that इस साल हमें एजुकेशन की तरफ हम इसको ज्यादा फोकस करते हुए बढ़ रहे हैं, और एजुकेशन में गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, जहाँ पे कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए सरकार ने बहुत सारी उपलब्धताएं करी हुई हैं। बच्चियों को बहुत पढ़ाने का, जैसे कि 10 साल पूरे हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के भी। सो मुझे ये लगता है कि इन 10 सालों में जिस प्रकार से ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बातचीत हुई है, सो इसी को फोकस करते हुए हमने ये सोचा कि जब हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की बात करते हैं, जहाँ स्कूल की जो बच्चियां हैं, जो अभी हाल फिलहाल 10वीं पास करके 10th पास जिन्होंने किया है और जिनके 75% प्लस आए हैं, एंड दोज हु आर दी ब्राइट गर्ल्स बट बीइंग कमिंग फ्रॉम द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनकी पढ़ाई कहीं ना रुक जाए, तो हम आज उसी मॉडल पे काम करने पे लगे हुए हैं। वी आर ट्राइंग टू टाई अप विद द गवर्नमेंट स्कूल्स, जहाँ पे कि जो बच्चियां हैं उनको पढ़ाई उनकी रुके ना। शिक्षा सबसे बड़ा मुझे लगता है कि योगदान है। अगर एक बच्ची शिक्षित है और पूर्णतः से शिक्षित है, यहाँ पे सिर्फ 10th और 12th तक की बात नहीं हो रही है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट लेट देम कंप्लीट द ग्रेजुएशन वेयर दे वांट टू बी इंडिपेंडेंट, वेयर दे कैन अर्न इंडिपेंडेंटली। तो मुझे लगता है कि ये आने वाला जो 5 साल का मिशन है हमारा, अब अगला, वो मैं 2 साल नहीं, मैं 5 साल के लिए कहूंगी कि वेयर वी आर ट्राइंग टू get right from the 10th grade
I mean to say now from the 11th class till their graduation, how we can look into their education, how we can help them through counseling, through providing them the better amenities towards the education. This is what the plan for Sangini Saheli is. I have one last question, Ashish, if Yeah. time allows. Yes, I know we're talking about the social aspect, ma'am Sangini Saheli, but आप political scene में हैं अभी, so I'm sure our audience would want to know about the political landscape and women leadership. कि there are many women and even young girls at grassroots who we need to develop their leadership qualities, we need to involve them into leadership. तो ये कैसे आप promote कर रही हैं, and what are the challenges that you are facing in developing those leadership qualities in women that you work with? So, जिस प्रकार से आज की जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, so I must congratulate our Prime Minister, Mr. Modi, where he has taken this plunge, and we have been talking for making Viksit Bharat by 2047. That is what we are aiming and eyeing for. So 2047 का विकसित भारत कैसा होगा, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका होगी, क्या महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हुई इस जो आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है, आज हम 4th हैं in the world aspect as related to the economy, तो आने वाले टाइम में 2047 में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जिसमें कि महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान रहने वाला है, क्योंकि हम 50% की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीडरशिप के जो रोल्स हैं, मैंने देखा है कि भाजपा ने बहुत it is a humongous organization where we are the world largest party. तो मैं ये देख रही हूँ कि नया जो बच्चा है, जो यूथ है, जो गर्ल चाइल्ड है, between the college or working in any of the private aspect or being a doctor, कोई ना कोई कहीं ना कहीं भाजपा के साथ जुड़ करके आगे काम करना चाह रहा है। सो हम अपनी यंग वुमेन को, हम अपनी महिलाओं को एक उचित प्लेटफॉर्म, एक राइट प्लेटफॉर्म जहां पे आपकी आवाज को सुना जाए और अपने काम को आप फोकस्ड वे पे दिखा सकें, जहां पे कि आप भाजपा बहुत बड़ा वेन्यू प्रोवाइड करती है, जहां पर कि आपकी पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में आपका बहुत बड़ा रोल है। तो जहां आप 33% राजनीतिक क्षेत्र में अगर महिलाओं का इम्प्लीमेंटेशन, जो कि हमारे बिल पास हुए पार्लियामेंट में, जहाँ पे कि विमेन रिजर्वेशन बिल आने जा रहा है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि 2047 में महिलाओं का जो भागीदारी है, 50% महिलाओं की जो भागीदारी है, हमारी जो इकोनॉमी है और उसको बढ़ाते हुए आई विश कि 2047 तक हम नंबर 1 बने। सो मुझे बहुत बड़ी भूमिका दिखती है उसमें, महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। उसके चैनल्स अलग हैं, उसमें जिस प्रकार से एजुकेशन आज के टाइम पे बच्चियों का बढ़ता चला जा रहा है और हम उसको स्केल अप करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी बच्ची छूटे ना पढ़ने से, कोई भी बच्ची शिक्षा से वंचित ना हो, तो उस पे सरकार भी काम कर रही है और हम जैसे जो समाज में कार्यकर्ता हैं वो भी इस पे लगे हुए हैं, अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिक्स। सो आई बिलीव वी आर गोइंग टू अचीव दिस बाय 2047। जो भी हमारा छोटा मोटा योगदान इसमें हम लगे हुए हैं करने के लिए, आई विश दिस हैपेंस सून। Wonderful. I think जी हमारी लोगों के initiatives, just wanted to add one thing कि initiative सभी करते हैं, but I think you have a very purpose driven approach to everything. You have a different mindset. आप सब चीजों को मतलब पूरी तरह से evaluate करके then you know take the effort to make a change. So that's wonderful. That's a wonderful approach. Yes, Thank you. Ashish. Yeah, so I was just telling that the CSR universe is standing by your initiatives, and we are all support for you. We wish you good luck in all your initiatives, especially at Sangini Saheli.
एंड जो आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी है, विकसित भारत का लक्ष्य सोचकर, ठीक है, मुझे लगता है कि उसमें ढेर सारी आप लोगों को सक्सेस पॉइंट्स मिलते जाएं, और हम विकसित भारत महिला सशक्तिकरण के साथ जो हम पहुंचना चाहते हैं वहां तक वो पहुंचे, और फ्यूचर में जो भी एवेन्यूज होंगे, जहां भी जिस तरीके से भी हम आपके सस्टेनेबिलिटी मूव्स को, इनिशिएटिव्स को सपोर्ट कर पाए, we'll be there to help and support also. Thank you so much, Anything Ashish. concluding remarks, Ruchika? Yes, just like I said, that she has a very purpose-driven approach to everything. और इसी तरीके से I think our audience, especially the stakeholders, the social sector stakeholders, they should work on the initiatives. मतलब अंदर से आना चाहिए, जो passion है, जो जज्बा है, that should, I think, Priyal ma'am is very inspiring on that front. So, Shweta? Thank you Ruchika, and Priyal ji, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. I think this will inspire lot many women to think big and think new, and also look forward to creating new opportunities, venturing into the new areas which have not been traveled, the path which has not been taken by many women in the past also. So thank you very much for joining us for this leadership talk session. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much.